congenital that is the congenital disorders of female genital organ. So this is the topic basically for us, that is the congenital disorders of fine. So what are the basic congenital disorders related to the female genital organs? क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं? That basically I can say that is the narrow vaginal introitus, that is the narrow vaginal opening I can say, या I can say imperforated hymen, or I can say like vaginal agenesis, except the vaginal agenesis, the next is that is the uterine abnormalities या uterine anomalies. यूट्राइन abnormalities में क्या चीजें आती हैं? आर्केड यूट्रस, यूट्राइन डायल्डेल्सिस, या आई कैन से यूट्राइन बाइकॉर्नुएट यूट्रस या बाइकॉर्निस. These all things basically come under the uterine abnormalities. Alright guys, तो हम इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करते हैं. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी vaginal opening, or you can say narrow vaginal introitus. Alright. Narrow vaginal introitus. Narrow vaginal introitus का मतलब होता है it is the narrow opening of vagina. Very simple meaning. Narrow vaginal opening. So the narrow vaginal opening is basically called as narrow vaginal introitus. Basically why it occurs? ये क्यों होता है? It occurs due to the Mullerian duct defect या improper fusion of. इसके कोज का क्या रीजन है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये एक बेसिकली एक चीज तो याद रखना, ये एक कंजेनाइटल अनोमलीज है. कंजेनाइटल अनोमलीज होता है मतलब बर्थ से पहले एम्ब्रियोनिक पीरियड में कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण से ये हुआ है. तो मैंने क्या बोला? मेनली improper development of Mullerian duct. ये एक बड़ा कारण होता है बेसिकली किस चीज का? नैरो वेजिनल इंट्रोइटस का. improper development of Mullerian duct will lead to the narrow vaginal introitus. All right. Now, what are the basic signs and symptoms? What are the clinical features? What are the basic features the patient will develop? How the patient will be diagnosed? All those things. तो एक चीज तो सबसे बड़ी बात यह है कि वेजिनल इंट्रोइटस अगर नैरो है, this thing will be not be diagnosed until the female marries. All right, like most probably female का मैरिज से पहले तक इसमें नहीं होता. सिम्टम्स में क्या आते हैं बेसिकली सिम्टम्स या क्या कंप्लेंट होती है? चीफ कंप्लेंट फीमेल की. यहाँ पे मेनली फीमेल विल कंप्लेन अबाउट द डिस्पेरियूनिया. मोस्टली शी विल कंप्लेन अबाउट द डिस्पेरियूनिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पेरियूनिया? डिस्पेरियूनिया का मतलब होता है पेनफुल कोइटस या पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स. दैट इज कॉल्ड डिस्पेरियूनिया. ओके. डिस्पेरियूनिया के अलावा sometime the female may complain about the UTI, that is the urinary tract infection. Mainly डिस्पेरियूनिया की कंप्लेन होती है, but sometime female may have UTI or dysmenorrhea, मतलब पेनफुल menstrual cycle. पेनफुल menstrual cycle और UTI और डिस्पेरियूनिया, यही इसका एक जो डिस्पेरियूनिया है ये इसका एक मेन क्लासिकल सिम्टम है. और सो आई कैन से दैट एक बहुत लंबे समय तक ये जो डिजीज होता है या तो मैं तो लाइक जो बड़ा प्रॉब्लम है कंजेनिटल प्रॉब्लम, ये डायग्नोज नहीं होता. डायग्नोज होगा मोस्ट प्रोबेबली लाइक यूजुअली आई कैन से आफ्टर द मैरिज. ऑलराइट. नाउ व्हाट इज द मैनेजमेंट?
So what is the management of narrow vaginal introitus? Narrow vaginal introitus का क्या management होगा? Usually I can say there will be a famous operation, that is the Fenton operation. Please याद रखिए, या you can say that is the perineoplasty. तो क्या ऑपरेशन होगा? Fenton's operation, Fenton operation या perineoplasty. अब Fenton operation में बेसिकली करते क्या हैं? What they will basically perform in this procedure, they will basically dilate the vagina. Very simple. तो जो ओपनिंग एरो थी उसको दोबारा डायलेट किया जाता है. दैट इज द बेसिक थिंग रिगार्डिंग दी नैरो वेजिनल इंट्रोइटस. आई सेड द अबाउट द ऑपरेशन, दैट इज द फेंटन ऑपरेशन या पेरिनियोप्लास्टी. फेंटन ऑपरेशन या पेरिनियोप्लास्टी कैन बी, मतलब इसकी दोबारा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके वेजिनल ओपनिंग को दोबारा से डायलेट किया जाता है. दैट्स इट. So guys, this was a very small topic that was regarding narrow vaginal introitus. So after this congenital disorder, the next congenital disorder is the imperforated hymen. Hymen is a small epithelial membrane, I can say, which covers the vaginal opening. Hymen के बारे में बता देता हूँ पहले. What is the hymen? Hymen is a covering layer. It is a covering, I can say, like epithelial. It is a epithelial covering over the vagina. Epithelial covering over the vagina. I can say it will be a incomplete. It is a incomplete closure of the vagina. Basically normally ये चीज होती है कि vagina को जो होता है वो incomplete, जो hymen है that will be covering, but hymen can be hymen can be ruptured. ये जो hymen होता है it can be ruptured after the coitus. It can be ruptured by the cycling or some other exercise of the female. Fine. So like because of the activities, because of the aerobic exercises, cycling or some other activities, the hymen can be ruptured. तो ये layer होता है, ये rupture होता है. But in some female the hymen will be completely closing the female vaginal opening. हम उसमें बात करते हैं. What I said about the hymen? Hymen is a basically incomplete closure or it is a incomplete epithelial lining over the vagina. Vagina के ऊपर एक incomplete vaginal epithelial lining था, तो vagina को थोड़ा सा या completely नहीं कह सकता मैं, incompletely close कर रहा था. Fine. अब हमारा टॉपिक है imperforated hymen. So imperforated hymen means what? It means that it is a complete closure of vaginal opening by the hymen layer. So hymen layer के द्वारा vaginal opening को completely close कर देना, that is known as imperforated hymen. I can say मैं इसको imperforated शब्द को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि hymen जब incompletely close ना करके अगर vaginal opening को totally completely close कर दे और वो फ्यूचर में रप्चर भी ना हो तो उसको कन्वर्ट यूज करेंगे imperforated hymen. So complete closing of the vagina by the hymen layer is called imperforated hymen. अब इसके लिए बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स होंगे? ये भी एक कंजेनाइटल प्रोसेस है. तो बेसिकली आई कैन से दैट यूरोजेनाइटल साइनस और मुलेरियन डक्ट का एक जो जॉइंट फ्यूजन, आई कैन से द मुलेरियन डक्ट और यूरोजेनाइटल साइनस का जो एक डिफेक्ट है, मैंली यूरोजेनाइटल साइनस का डिफेक्ट कह सकता हूँ, बिकॉज यूरोजेनाइटल साइनस जो होता है वो एंटीरियर वेजिनल ओपनिंग एरिया को डेवलप करता है एम्ब्रियोलॉजी पीरियड में. फाइन. साइलेंट सिम्टम्स में क्या होगा? साइलेंट सिम्टम्स में बेसिकली आई कैन से दैट फीमेल विल हैव डिस्पेरियूनिया. फीमेल विल हैव डिस्पेरियूनिया. डिस्पेरियूनिया के अलावा मेजर सिम्टम्स में आई कैन से दैट इज दी लाइक क्रिप्टोमेनोरिया. There will be cryptomenorrhea.
क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोमेनोरिया मीन्स व्हाट? क्रिप्टोमेनोरिया मीन्स false menstrual cycle. False menstrual cycle. It means that क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब आप ये कह सकते हो, female will have the menstrual cycle, female will have the menstrual cycle, but there will be a absence of excretion of menstrual blood. There will be absence of the excretion of the menstrual blood. मतलब जो menstrual bleeding होगा, that will not be excreted out. वो बाहर excrete out नहीं होता। क्यों? Because जो vaginal opening है, उसको किसने कवर कर रखा है? हाइमन ने। So basically the blood will be collected inside the vaginal opening. अपर वेजनल पार्ट है नियर बाय द सर्विक्स पार्ट, उस पार्ट में बेसिकली क्या होगा? द ब्लड विल बी कलेक्टेड। एंड ऑल्सो कई बार क्या होता है, तो बेसिकली ब्लीडिंग तो स्टार्ट हो गया, फीमेल में मेनार्की स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो बट जो ब्लीडिंग थी वो ब्लीडिंग बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हुई, वेजनल एरियाज के अंदर स्केंटी रूप में या क्लोट के रूप में डिपोजिट होती चली गई। जब लगातार 1 या 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे, जो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, तो वो पूरा ब्लड अपर वेजनल पार्ट या मैं कह सकता हूँ यूट्राइन बॉडी, यूट्रस के ऊपर भी डिपोजिट या उस एरिया में भी रिटेन रहने लग जाता है। तो क्रिप्टोमेनोरिया का मतलब बेसिकली ये होगा, इट इज ए false menstrual bleeding in that there will be menstrual bleeding from the uterine side, यूट्रस के यहाँ से ब्लीडिंग तो होगा, बट द मेंस्ट्रुअल ब्लड विल नॉट एक्सपेल आउट, जो ब्लड होगा इट विल नॉट बी एक्सक्रीटेड आउट ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द वेजाइना बाय द हाइमन। ओके, ये होगा क्रिप्टोमेनोरिया। बाकी और क्या रिमेनिंग साइन एंड सिम्पटम में? फीमेल विल हैव लोअर एब्डोमिनल पेन, फीमेल विल हैव लोअर एब्डोमिनल, ऑलराइट। few of the female, like as देखिए ये वर्ड लिखा मैंने, dyspareunia, so sometimes it can cause in the further problems, it can cause like infertility. How the infertility? It is a treatable infertility. It's not a permanent infertility, I can say. जब hymen will be closed, there will be a problem in the coitus. So basically, it will lead to the improper fertilization. Means जब वेजाइना के अंदर इंट्रोइटस या कोइटस नहीं होगा, तो आने वाले टाइम में आई कैन से दैट देयर विल बी नो इनसमाइनेशन। इनसमाइनेशन में भी डिफिकल्टीज होगी मेल के लिए, देन इट विल लीड टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो। फाइन, दीज आर द बेसिक थिंग्स विच अकर इन द इनपरफोरेटेड हाइमन। Right now, if the hymen is imperforated, basically, what is the management? What is the basic management of imperforated hymen? Very simple. Vaginoplasty. Vaginoplasty, या making an incision, or you can say क्या करेंगे वेजिनोप्लास्टी के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रोसीजर के अंदर में इंसिजन ओवर दी हाइमन। हाइमन से आपको छोटा सा कट लगाना है ताकि जो इनपरफोरेटेड था वो परफोरेटेड बन जाए आप। तो वी आर मेकिंग एन स्मॉल इंसिजन ओवर दी हाइमन। नेक्स्ट, जैसे आप इंसिजन लगाओगे, देयर विल बी एक्सपल्शन ऑफ टेरी ब्लड from vagina. There will be expulsion of terry-colored blood या terry-color blood from the vagina. ये बेसिकली होगा बिकॉज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू से पहले उस समय जो ब्लड कलेक्टेड हुआ था वेजिनल रीजन में, आपने जैसे ही वहां पे इंसिजन लगाया तो जो ब्लड है वो वेजिना के थ्रू बाहर एक्सपेल होने लग जाता है। फाइन, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली वेजाइनोप्लास्टी। तो गाइज लाइक व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? अब आपके पास एक सिंपल सा टॉपिक था, दैट वाज द इनपरफोरेटेड हाइमन। आप उसके बारे में समझ में भी आया होगा। लेकिन इनपरफोरेटेड हाइमन का मतलब हाइमन की टोटल ओपनिंग नहीं थी बिकॉज ऑफ द मोस्टली यूरोजेनिटल साइनस की एब्नॉर्मलिटी के कारण। फाइन, हुआ क्या फीमेल के अंदर? देयर विल बी डिस्पेरियूनिया, पेनफुल कोइटस होगा। क्रिप्टोमेनोरिया एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ही फीमेल में प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, फीमेल विल कंप्लेन द लोअर एब्डोमिनल पेन, बट
ऑल्सो व्हेन यू डायग्नोज द डॉक्टर्स आगे फर्दर यूएसजी करेंगे, एंडोमेट्रियल साइट को चेक करेंगे, भाई यहाँ से तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, द ब्लीडिंग विल बी देयर बट द ब्लड इज नॉट एक्सपेल्ड आउट, इसलिए आपने वर्ड यूज कर दिया फाल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द क्रिप्टोमेनोरिया। ऑलराइट, अब जब क्रिप्टोमेनोरिया है तो उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ट्रीटमेंट यही होगा कि जो इम्परफोरेटेड हाइमन उस पर स्मॉल इंसिजन लगाएंगे हम लोग, मोस्टली 15 नंबर साइज की ब्लेड से, जैसे ही आप इंसिजन लगाओगे ब्लड विल बी एक्सपेल्ड आउट एंड धीरे धीरे जो हाइमन होगा इसकी प्रॉपर ओपनिंग हो जाएगी, और इस प्रोसीजर को हम कह सकते हैं वेजाइनोप्लास्टी। दैट्स इट। एक वर्ड आता है यहाँ पे क्रिप्टोमेनोरिया में आता है बेसिकली ये वर्ड हेमेटोकोल्पस, एंड एक वर्ड है हेमेटोमेट्रा। हेमेटोकोल्पस एंड हेमेटोमेट्रा का मतलब क्या है? हेमेटो वर्ड का मतलब आप सबको पता है ब्लड, ऑलराइट। हेमेटोकोल्पस का मतलब होता है इट इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड इन द अपर वेजाइनल एरिया, ब्लड कलेक्शन इन अपर वेजाइनल पार्ट। देखिए जब ब्लड बाहर नहीं आया क्रिप्टोमेनोरिया में तो वेजाइना में कलेक्टेड हुआ, और उस टर्म को आपने यूज कर दिया हेमेटोकोल्पस। जब मैंने बोला था आपको कि वेजाइना को क्रॉस करने के बाद जब ब्लड पूरा यूट्रस में भी कलेक्टेड होने लग जाता है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हेमेटोमेट्रा। सो इट इज द बेसिकली कलेक्शन ऑफ ब्लड इन दी यूट्रस, व्हेन द ब्लड इज कलेक्टेड इन द यूट्रस इट इज कॉल्ड हेमेटोमेट्रा। ऑलराइट, आई थिंक ये बहुत टर्म आपके क्लियर हो जानी चाहिए। आप ओके, नाउ लाइक इम्परफोरेटेड हाइमन ऑफ द वेजाइना के बाद एक वेजाइना से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है, दैट इज दी कंप्लीट वेजाइनल एजेनेसिस। कंप्लीट वेजाइनल एजेनेसिस। कंप्लीट वेजाइनल एजेनेसिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेनेसिस? एजेनेसिस का मतलब क्या है? एजेनेसिस का मतलब होता है absence of the development, basically I can say absence of the development of vagina is called as vaginal agenesis. So what is the meaning of complete vaginal agenesis? Means it is the complete absence of vagina इन फीमेल। तो फीमेल के अंदर जो वेजाना का कंप्लीटली अब्सेंस होता है या वेजाना नहीं होती, तो इसलिए वर्ड यूज करते हैं वेजानल एजेनेसिस। बेसिकली ये क्या प्रॉब्लम है? इट इज ए कंजेनाइटल प्रॉब्लम या इट इज ए कंजेनाइटल डिफेक्ट। इट्स ए कंजेनाइटल डिफेक्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट। तो ये एक मुलेरियन डक्ट का एक कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है बेसिकली, कंप्लीट एजेनेसिस या कंप्लीट अब्सेंस ऑफ वेजाइना। अब इस केस में बेसिकली क्या होगा? जो फीमेल होगा दैट विल बी फिनोटाइपिकली, आप ऐसे कह सकते हो द पेशेंट विल बी फीमेल। मैंने क्या वर्ड मेंशन किया है? द पेशेंट विल बी फिनोटाइपिकली फीमेल। इसका मतलब यह है कि फीमेल के अंदर वेजाना का अब्सेंस है, बट बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो एक नॉर्मली एक अपनी फॉर्म में होते हैं, वो रूडिमेंट्री में नहीं होते, मतलब उनकी एक नॉर्मल ग्रोथ होती है। जैसे सपोज मैं अगर आपको कहूं वेजाइनल एजेनेसिस है, बट बाकी जैसे सपोज कीजिए लाइक इफ आई से ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब, मीन्स दीज थिंग्स विल बी प्रेजेंट। अब हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है, वेजाइनल एजेनेसिस में देयर विल बी कंप्लीट अब्सेंस ऑफ वेजाइना इन द फीमेल एंड ऑल्सो द यूट्रस ऑल्सो मे बी एब्सेंट। ये याद रखना, मतलब बिकॉज मुलेरियन डक्ट वेजाइना के बाद ऊपर की तरफ किसको बनाती है? यूट्रस को। तो जब नीचे वेजाइना मुलेरियन डक्ट में डिफेक्ट हुआ, जब वेजाइना का फॉर्मेशन नहीं हुआ फीमेल में, तो हो सकता है यूट्रस का भी फॉर्मेशन ना हो। प्लीज ये चीज याद रखना। तो देयर विल बी, मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, हियर sometime uterus will also be absent,
तो वेजाइना के साथ साथ यूट्रस का भी यहाँ पर क्या हो सकता है, अब्सेंस हो सकता है। ये चीज प्लीज याद रखना आप लोग। फाइन, बट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, phenotypically female word क्यों, बिकॉज उसके gonads will be proper working and she is having the fallopian tube and other organs. So because of this reason, because of the presence of gonads की प्रेजेंस के कारण वहां पर मैंने यूज किया phenotypically female, बाकी उसके सारे सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे एज ए फीमेल। ऑल राइट, अब देयर विल बी, आई जस्ट सेड दैट, अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको वर्ड दिख रहा है कंप्लीट एजेनेसिस। तो कंप्लीट एजेनेसिस होगा फीमेल के अंदर, तो क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। So what are the basic symptoms related to the complete agenesis of vagina? So there will be absence of coitus, amenorrhea, absence of menstrual cycle. Amenorrhea का मतलब होता है absence of menstrual cycle. There will be absence of coitus, sexual intercourse नहीं होगा, menstrual cycles नहीं होंगे, infertility, there will be infertility, and there will be delayed puberty. Mostly the female will have delay in the puberty. Puberty को start होने में भी काफी टाइम लगेगा। ऐसे कुछ सिम्टम्स जो होते हैं बेसिकली दोज विल बी प्रेजेंट इन द फीमेल इन केस ऑफ कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ वेजाइना। अब व्हाट इज द मैनेजमेंट? हाँ, एक चीज प्लीज आपको एक और मैं बता देता हूं यहाँ पे पॉइंट। बेसिकली द वेजाइनल एजेनेसिस, ये जो मुलेरियन डक्ट का ये वाला जो डिफेक्ट होता है, इट विल कम अंडर द वन सिंड्रोम। एक बड़ी डिजीज है उसके अंडर में आता है ये, तो मैं लिख रहा हूं इसको, इट कम्स अंडर, ये किसके अंडर में आता है? देखिए, मेयर रोकीटोन्स्की कोस्टोर सिंड्रोम। कई बुक्स में कोस्टोर वर्ड पहले यूज है होसोर से, वो कोई इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं है, दोनों चीजें सेम है। आई हैव वेरीफाइड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो बेसिकली इट इज ए मेयर रोकीटोन्स्की कोस्टोर कोस्टोर सिंड्रोम या कोस्टोर होसोर सिंड्रोम। मेयर रोकीटोन्स्की कोस्टोर सिंड्रोम, बेसिकली ये एक फीमेल से रिलेटेड एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है। इन दिस बेसिकली द जेनाइटल ऑर्गन्स विल बी नॉट बी डेवलप्ड एंड देयर विल बी हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। फीमेल के अंदर जो गोनाड्स होंगे उनके द्वारा जो हार्मोन्स होंगे उनके प्रोडक्शन में भी डेफिशिएंसी होगा। गोनाड्स में भी गोनाड्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिसके कारण से उसको फीमेल फिनोटाइपिकली एक स्ट्रक्चर मिलता है, बट बाकी जो जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे वो अब्सेंट होते हैं। तो अंडर द मेयर रोकीटोन्स्की होसोर सिंड्रोम जो वेजाइनल एजेनेसिस है, ये एक बड़ा इंडिकेटर होता है, एक बड़ा सिम्टम के रूप में प्रेजेंट होता है। फाइन, अब अगर सपोज कीजिए फीमेल के अंदर वेजाइनल एजेनेसिस है या वेजाइना इज कंप्लीटली अब्सेंट, व्हाट इज द मैनेजमेंट? हम वहां पे क्या कर सकते हैं? बेसिकली जब वेजाइनल एजेनेसिस है, यूट्राइन एजेनेसिस है, यूट्रस का भी अब्सेंस है और वेजाइनल एरिया का भी अब्सेंस है, तो वहां पे कुछ ज्यादा करने के लिए होता नहीं है। वी कैन नॉट डू सो मच इन दैट केसेस। मोस्ट प्रोबेबली लाइक सम टाइम वी कैन से लाइक हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वी कैन गो फॉर दी सम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, सम पेरिनियोप्लास्टी कैन बी डन, पेरिनियोप्लास्टी किया जा सकता है, या वी कैन से दैट यूट्राइन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यूट्रस का रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑप्शन एक मेनली अवेलेबल होता है। फाइन, तो गाइज बेसिकली कंप्लीट एजेनेसिस ऑफ वेजाइना। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज दी यूट्राइन एनोमलीज। We will discuss regarding the uterine anomalies या uterine abnormalities। क्या क्या abnormalities यूट्रस से रिलेटेड होती हैं? तो बेसिकली यहाँ पे क्या abnormalities होंगी? मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी फ्यूजन डिफेक्ट। क्या होगा? ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी? बिकॉज ऑफ द मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट, या यू कैन से मुलेरियन डक्ट फ्यूजन डिफेक्ट। फाइन, फ्यूजन डिफेक्ट ऑफ मुलेरियन डक्ट। ऑल राइट, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मेनली मुलेरियन डक्ट की अबनॉर्मलिटी के कारण तो हो सकता है एक साइड के
जो मुलेरियन डक्ट मैंने बताई थी आपको यूनिलेटरल सॉरी बाइलेटरल होती है, तो यूनिलेटरल डक्ट में या बाइलेटरल दोनों के एक साथ डक्ट में प्रॉब्लम होने के कारण से पेशेंट को मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट होगा एंड दैट कैन लीड टू यूट्राइन एनोमलीज। अब क्या क्या एनोमलीज होंगी, क्या क्या दिक्कत सामने आएंगी, उसमें सबसे पहले आएगा आर्क्वेट यूट्रस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्क्वेट यूट्रस? आर्क्वेट यूट्रस का बेसिक मीनिंग क्या होता है? देखिए आर्क्वेट यूट्रस इट्स नॉट ए मेजर डिफेक्ट, ये कोई एक बड़ा डिफेक्ट नहीं है। आर्क्वेट यूट्रस को आप ऐसे समझ सकते हो लाइक दिस। ऑल राइट, देखिए ये वाला प्रॉब्लम, इट्स ए बेसिकली प्रॉब्लम इन दी डिप्रेशन इन दी कोर्नुआ। जो यूट्रस का कोर्नुआ पार्ट है, जो फंडस पार्ट है, उसमें एक डिप्रेशन आ जाता है, दैट इज दी आर्क्वेट यूट्रस। ऑल राइट, सो बेसिकली द यूट्रस विल लुक लाइक ए concave shape or you can say heart shape. The uterine fundus will appear like a concave shape or heart shape. ये चीज याद रखना, बेसिकली concave shape or heart shape uterus is basically called as arcuate uterus. So basically it is a Mullerian duct fusion defect, and in that there will be problem in the cornua part of uterus. Cornua पार्ट ऑफ यूट्रस, और यू कैन सिंपली से आप क्या कह सकते हो, ये एक फंडस के एरिया में होने वाली यूट्रस की प्रॉब्लम है। इसमें क्या हुआ, देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल डिप्रेशन, देयर विल बी अ स्मॉल डिप्रेशन इन दी यूट्राइन फंडस, दैट इज कॉल्ड आर्क्वेट यूट्रस। इसके कारण से पेशेंट को कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं फेस होती हैं, या आई कैन से लाइक द पेशेंट विल डेवलप सम मेजर सिम्टम्स। ऑल राइट, तो ये एक माइनर प्रॉब्लम थी आर्क्वेट यूट्रस। अब आर्क्वेट यूट्रस के बाद next one, that is the uterine didelphys. Uterine didelphys. Uterine didelphys means what? What is the meaning of uterine didelphys? इसका मतलब होता है दो यूट्राइन केविटी, दो सर्विक्स एंड दो वेजाइना। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो लाइक दिस। All right, so presence of, it is the presence of two uterine cavities, it is the presence of two uterine cavities, cervix and vagina। मतलब दो यूट्रस की कैविटीज, दो सर्विक्स एंड दो वेजाइना। मतलब आप ऐसा कह सकते हो इस चीज के बारे में, आई विल रब द वर्ड, मैं यूट्राइन डाइडेल्फिस का स्पेलिंग रब कर रहा हूं। बेसिकली यहां पे ये वाली प्रॉब्लम है, लाइक दिस, देयर विल बी अ सेप्टम फ्रॉम द वेजाइना इटसेल्फ। वेजाइना से ही सेप्टम की शुरुआत हो जाती है, तो वेजाइना के अंदर से ही सेप्टम का शुरुआत होगा। तो व्हाट यू कैन से, दो वेजाइनल ओपनिंग, दो सर्वाइकल ओपनिंग एंड दो यूट्राइन ओपनिंग, दो यूट्रस की ओपनिंग, दो वेजाइना की ओपनिंग एंड दो सर्विक्स की ओपनिंग। ये वर्ड के लिए क्या बोलेंगे आप, यूट्राइन डाइडेल्फिस, दैट्स इट। अगला वर्ड, तो यूट्राइन आर्क्वेट, यूट्राइन डाइडेल्फिस। इसके अलावा बाद में जो तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास आती है, दैट इज द यूट्राइन बाइकॉर्निस। आपने एक फेमस वर्ड सुना होगा, बाइकॉर्नुएट यूट्रस। सो दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम या मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द यूट्रस इज द बाइकॉर्नुएट यूट्रस। चलिए अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जब यूट्रस में दो यूट्राइन कैविटी, दो सर्विक्स एंड दो वेजाइना एरिया प्रेजेंट हो, तो उसको यूट्राइन डाइडेल्फिस बोलते हैं। ये वाला डायग्राम बेसिकली। अब नेक्स्ट है यूट्रस बाइकॉर्नुएट। यूट्राइन बाइकॉर्नुएट या बाइकॉर्नुएट यूट्रस या यूट्रस बाइकॉर्नुएट, इसका मतलब एक सिंपल सा है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ टू कॉर्नुआ इन द यूट्रस। प्रेजेंस ऑफ टू कॉर्नुआ इन द यूट्रस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सेप्टम लाइक दिस।
So the presence of a septum in the uterus. अब देखिए यहां पे मैंने क्या बोल रहा हूं, cervix will be same, there will be one cervix, one vagina, but what will be two? Bicornuate. The cornua part of the uterus is separated, so I can say that there will be two uterine cavities. There will be two uterine cavities, or you can simply say that there will be two cornua. ये क्यों हुआ? Why this problem has happened? Why bicornuate uterus occurs? It occurs due to presence of a septum. Due to the presence of a septum, जब यूट्रस के अंदर, यूट्रस के कोर्नुआ पार्ट से यूट्रस की पूरी कैविटी में एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाए, ये भी मुलेरियन डक्ट डिफेक्ट ही है, याद रखना, ये भी मुलेरियन डक्ट के डिफेक्ट से ही होता है। तो जब दो सेप्टम, एक सेप्टम प्रेजेंट हो जाए जिससे यूट्रस के दो पार्टीशन हो जाए, तो उसको हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहेंगे। ये हो गए, दीज आर द डिफरेंट यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज। अब ये तो मैंने आपको बताया, यूट्राइन डाइडेल्फिस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, ये तीनों अबनॉर्मलिटीज के कारण पेशेंट को होता क्या है? बेसिकली व्हाट विल बी द, आई कैन से लाइक व्हाट आर द बेसिक साइन एंड सिम्टम, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे पेशेंट को? साइन एंड सिम्टम में आप बेसिकली कह सकते हो पेशेंट विल हैव लाइक अमीनोरिया, पेशेंट में डेवलप डिसमेनोरिया, अमीनोरिया, डिसमेनोरिया, इनफर्टिलिटी। पेशेंट को या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे नहीं बिल्कुल भी, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट भी होंगे देयर विल बी पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज द इनफर्टिलिटी, फीमेल विल हैव इनफर्टिलिटी कंप्लेंट, देन देयर विल बी चांस ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन। अगर लकीली वहां पे कंसीव होता भी है फीमेल, मान लीजिए कंसीव करती भी है, तो उस केस में क्या होगा, बहुत ही एक शॉर्ट ड्यूरेशन में शी विल बी अबॉर्टिंग द बेबी और द अबॉर्शन विल टेक्स प्लेस, ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन विल टेक्स प्लेस। इसलिए मैंने लिखा है रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट अबॉर्शन के अलावा बाकी क्या फर्दर सिम्टम्स होंगे? अगर सपोज अबॉर्शन नहीं भी होता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, तो क्या होगा? देयर विल बी प्रीटर्म लेबर, मीन्स अगर लाइक इफ अबॉर्शन डज नॉट टेक प्लेस, अगर अबॉर्शन नहीं होता है, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है लकीली अगर, तो देयर विल बी प्रीटर्म लेबर, देयर विल बी चांस ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ एंड इंट्रायूट्राइन डेथ एंड IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में हैपन, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है या इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है फीटस की। ये सारी प्रॉब्लम्स भी रिलेटेड टू होती हैं लाइक यूट्राइन एनोमलीज में, या हम कह सकते हैं एनाटॉमिकल डिफेक्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में होने वाले डिफरेंट एनाटॉमिकल फंक्शंस, डिसफंक्शंस, आई कैन से नॉट ए फंक्शंस, डिसफंक्शंस। ऑलराइट, इसके अलावा बाकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इनके अलावा लाइक व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स द फीमेल कैन हैपन? फीमेल के अंदर बेसिकली लाइक देयर विल बी डिले इन द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का डिले होगा बिकॉज यूट्राइन एनोमलीज के कारण बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं मेनली हार्मोनल डिफेक्टेड का, ईस्ट्रोजन प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स ज्यादा फेस होते हैं पेशेंट को। ऑलराइट, अब एक और प्रॉब्लम बेसिकली सिम्टम्स में आप लिख सकते हो, दैट विल बी लाइक यू कैन से there will be a chance of placenta previa and there will be a risk of PPS, postpartum hemorrhage, postpartum hemorrhage and placenta previa। ये दो बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर सपोज फीमेल ने कंसीव किया और कंसीव करने के बाद में अगर सपोज जो फीटल कंसेप्चुअल पार्ट है, अगर फीटस का अगर इम्प्लांटेशन सेप्टम के ऊपर होता है, यूट्राइन सेप्टम पे अगर वहां पे इम्प्लांटेशन हुआ, तो देयर इज अ रिस्क दैट वहां पे प्लेसेंटा प्रीविया की जो प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट में आके इम्प्लांट हो सकता है, या फिर उसके अलावा वहां पे पोस्टपार्टम हेमरेज की रिस्क हो सकती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू दी यूट्राइन एनोमलीज, अमीनोरिया, डिसमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, रिकरेंट अबॉर्शन, इंट्रायूट्राइन डेथ, IUGR, प्रीटर्म लेबर और placenta previa या PPS. These are the common problems related to the uterine anomalies of the female. Fine. Now मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजमेंट से पहले आपको एक और टॉपिक पे लेके चलता हूं, दैट इज द डायग्नोसिस। ये यूट्राइन एनोमलीज या वेजाइनल एनोमलीज को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? क्या डायग्नोसिस होगा? वी कैन गो फॉर हिस्ट्रोस्कोपी, that is visualization of the uterus,
we can go for hysterography, we can go for CT and MRI and transvaginal sonography. TVS की फुल फॉर्म है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी. सो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कर सकते हैं. हिस्ट्रोस्कोपी दैट इज एक फाइबर ऑप्टिक स्कोप बेसिकली वेजाइना के थ्रू सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट करके हम यूट्रस की स्ट्रक्चर्स या सर्विक्स की स्ट्रक्चर्स ले सकते हैं. तो हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोग्राफी, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, दीज आर द बेसिक डायग्नोस्टिक टूल्स. ये जो चीजें हैं हम यूज कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द यूट्राइन एनोमलीज. नाउ व्हाट इज द मैनेजमेंट? द मैनेजमेंट बेसिकली लाइक will be reconstructive surgery. क्या होगा? There will be reconstructive surgery. Reconstructive surgery के अंदर क्या होगा? बेसिकली आप you can say that is the abdominal. क्या कर सकते हैं हम लोग सर्जरी में? बेसिकली सर्जरी में यही कर सकते हैं कि अगर वेजाइनल एरिया में सेप्टम है तो उसको बेसिकली हम लोग रिसेक्शन कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, या यूट्रस के अंदर अगर कोई बेसिकली अगर कोई सेप्टम की प्रेजेंस है तो उसको हम लोग सर्जिकली इंसीज कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं. तो आइदर वी कैन गो फॉर abdominal hysteroplasty या वी कैन गो फॉर दी pelvic hysteroplasty. ये पेल्विक हिस्टोप्लास्टी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय लेजर. इसको लेजर के द्वारा भी परफॉर्म कर सकते हैं. ये भी याद रखना, मतलब इसमें लेजर थेरापी या लेजर जो प्रोसीजर है उसका भी यूज किया जा सकता है. यहां पर करेंगे क्या इस प्रोसीजर्स के अंदर? इन दिस प्रोसीजर देयर विल बी मेकिंग एन इंसिजन ओवर दी सेप्टम. मतलब हम लोग एक सेप्टम में बड़ा इंसिजन लगाएंगे एंड थ्रू दैट इन मेकिंग एन इंसिजन वी विल रिमूव दैट बेसिकली लाइक जो सेप्टम किसके लिए वर्ड यूज किया है? सेप्टम का मतलब जो एक बीच में वॉल बन गई थी उस वॉल को हटाना है. जो एक यूट्रस के बीच में दीवार बनी हुई थी उस दीवार को हमें क्या करना है? एक कट लगा के हटाना है. दैट इज द बेसिक प्रोसीजर. तो मैंने लिखा है अब्डोमिनल हिस्टोप्लास्टी या पेल्विक हिस्टोप्लास्टी. थ्रू दीज प्रोसीजर्स वी कैन परफॉर्म द रिपेयरिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी. So all right guys, these are the basic abnormalities related to the I can say that female genital organs. हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग दी इम्परफोरेटेड हाइमन. वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दी वेजाइनल एजेनेसिस. वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दी नैरो वेजाइनल इंट्रोइटस या नैरो वेजाइनल ओपनिंग. वी ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग दी यूट्राइन अबनॉर्मलिटीज दैट इज दी आर्क्वेट यूट्रस. आर्क्वेट यूट्रस के बाद में यूट्राइन डाइडेल्फिस. यूट्राइन डाइडेल्फिस के बाद में हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम था बाइकोर्नुएट यूट्रस. अब इन यूट्राइन प्रॉब्लम्स में मेनली फीमेल को क्या प्रॉब्लम होती है? या तो रिकरेंट अबॉर्शन होता है या वहां पर इंप्लांटेशन नहीं होता, मतलब इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है. देयर विल बी प्रॉब्लम इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अबनॉर्मल होंगे. इसके अलावा फर्दर प्रॉब्लम्स अगर सपोज प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी होती है देयर विल बी रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. फाइनली बात करते हैं मैनेजमेंट की. मैनेजमेंट में कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पर नहीं होता. मेनली वी कैन परफॉर्म सम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी. हम यूट्राइन अनोमलीज में जो सेप्टम वगैरह है उसको रिप्लेस कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ लेजर और ओपन सर्जरी. लेप्रोस्कोपी के द्वारा हम लोग या लेप्रोटोमी के द्वारा इनको लाइक डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है. तो मैंने लिखा है यहाँ पे इंसिजन ओवर दी सेप्टम. ऑल राइट, सो दीज आर द बेसिक कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दी फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स. फाइन. सो द रिमेनिंग थिंग्स लाइक जो भी बेसिक थिंग्स थी वो हमारी कंप्लीट हुई. अब इसके बाद में लाइक फ्रॉम दिस वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्यूबर्टी. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा दैट विल बी प्यूबर्टी. वी विल डिस्कस रिगार्डिंग प्यूबर्टी. वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी लाइक प्यूबर्टी के बारे में. प्यूबर्टी के बाद में लाइक बेसिकली आई कैन से लाइक वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दी मेनोपॉज. प्यूबर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रीकोशियस प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी, दैट विल बी डिस्कस. तो प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या प्यूबर्टी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन है दैट वी विल डिस्कस इन दी आवर अपकमिंग चैप्टर.